Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the month of November 2023. क्या हो रहा है आपके लिए नवंबर के मंथ में? What can you expect? What is happening? What are you doing in the month of November? What is coming up for you? इस बारे में रीडिंग है. It's your November 2023 predictions. So yeah, हमेशा की तरह we're gonna have 3 piles. So you have to choose your pile according to your date of birth. So pile number 1 is the Sattvic sign, pile number 2 is the Rajasic signs, pile number 3 is the Tamasic sign. So अगर आपका birth date जो है वो कैंसर सीजन में आता है, then you have to choose pile number 1. If your birth date comes in the Taurus season, then you have to choose pile number 2. And if अगर आपका birth date जो है it's coming in the Virgo season, then you have to choose pile number 3. So ऐसे आपको अपनी पाइल को पिक करना है. Pile number 1 is going to be of Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces season. Pile number 2 is the Aries, Taurus, Gemini, Libra season. Pile number 3 is Virgo, Scorpio, Capricorn और Aquarius season. Alright, so जिस भी सीजन में जिस भी डे पर आपका बर्थडे आता है उस डेट को उस पाइल को आपने पिक करना है. Alright. So, and also one more thing, if I say in the reading November 2024, I really apologize, alright? It's November 2023 prediction, alright? This was the intention, November 2023. So, we are advanced people and अगर 2024 मेरे मुंह से निकल जाए, so it's just, say that, okay, Akshata is saying 2023, alright? I'm also filming this intro after doing the reading and I noticed कि एक दो बार बीच में I've said November 2024. So I really apologize for that. It's the reading. The intention is November 2023. So I really apologize if you see that, if you hear that. Just think that it's like Akshata is saying November 2023, even if I said 2024. The intention, the reading intention, cards pull out, इस intention जो है कि November 2023 के बारे में पता लगे. Alright, so yeah, let's hop right into the reading now. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth date है वो Cancer, Leo, Sagittarius या Pisces वाले season में किसी एक season में आता है. Let's get started with the reading. So सबसे पहले हम Oracle से शुरू करेंगे. Pile number 1 के लिए November का month कैसा है? What is happening for pile number 1? What pile number 1 is doing in the month of November? Let's get an overview. Here, and then we are gonna, we'll pull out the cards for your career and your relationship, health, finances, all that. Okay, so we have beneath the surface, hidden truth, something unknown. All right. Okay. What I feel is pile 1. आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में या फिर रिसर्च में या फिर यू आर अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशू. यू आर डूइंग स्कॉर्पियो रिलेटेड थिंग्स. यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग विच इज़ अननोन. ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता है. यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ स्टफ इन द मंथ ऑफ नवंबर. मिस्टिकल स्टफ, जो चीज़ें बीनीथ द सरफेस है, जो डार्कनेस में है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता है. यू आर काइंड ऑफ लर्निंग अबाउट दोज थिंग्स एंड यू आर ब्रिंगिंग दोज थिंग्स आउट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एंड देन शोइंग देम द हे, I got something, so look at it. So you are doing that stuff and you're also doing moon rituals. Many of you are into moon rituals and I do see that you can have your sun moon rising in the or your ascendant lord in the nakshatra of Aquarius or Pisces. Somehow Aquarius और Pisces ये sign आपके D1 main birth horoscope या नवांशा में या D12 chart में important sign हो सकता है because इन दो signs में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आता है. And Puro Bhadrapada people are your normal day-to-day workers. They are, IT, they are in IT sector or they are doctors or engineers, But when you
गेट टू नो देम, तो आपको पता चलता है ओ दे आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, ओ दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मून रिचुअल्स. सो these kind of people come out of Uttara and Purva, both Bhadrapada nakshatra. But हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि you are doing something related to things which are hidden, things which are unknown, astrology, occult mysticism, and even आपको कुछ hidden truths के बारे में पता लग रहा है, कुछ unknown facts के बारे में पता लग रहा है. आप इन चीज़ों के बारे में खुद efforts भी कर रहे हो और ये चीज़ें आपको somehow ये information आपको मिल भी रही है. So it's a really good month for astrologers or tarot card readers or psychic readers or people who are interested in these subjects. So next we have Up from the Depths, Releasing Difficulty. Pile number 1, जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी you are letting them go, और या फिर आपको बड़ा easy हो गया उन चीज़ों में. अब you're maybe used to that and now those things are easy. एंड इनफैक्ट जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी, आपने अभी तक नहीं भी करी थी वो चीज़ें, और वो चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी, उन चीज़ों में वो चीज़ें अब आपको ईजी लगनी शुरू हो गई है सडनली. एंड द थिंग्स विच यू फेल्ट कि डिफ़िकल्ट है, कहीं ना कहीं आपने उसका ईजी वे आउट पा लिया. देन वी हैव लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, सरेंडर, फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट्स. सो यहाँ पर ये शो हो रहा है. एंड इवन लाइक वी हैव द नवंबर मंथ हेयर, मतलब हम नवंबर के मंथ की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और इस कार्ड में भी जो है वी आर सीइंग कि यहाँ पर कैलेंडर में नवंबर ही लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी. So yeah, I mean this is an indication that November month becomes really important for you, pile number 1. And even इस November month में time is actually going really quickly. बहुत जल्दी नवंबर का मंथ बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा. एंड आई डू फील देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एज वेल, लॉट ऑफ डेडलाइंस, बहुत काम है नवंबर के मंथ में. यू आर रियली बिजी, बट एट द सेम टाइम द गाइडेंस इज सरेंडर. द गाइडेंस इज कि it's okay to take breaks, don't be so hard on yourself. But I do feel that you're extremely busy, pile number 1, in the month of November. You have a lot of work, lot of commitments to fulfill, lot of deadlines. बहुत busy जाने वाले नवंबर का month. And in fact, again, it's a festival season. It's a festive season. It's Shadi season is here. Diwali is in November. I mean, things are jam-packed for you, pile number 1. They are jam-packed. Something more. Achha, in the end of the deck we have the healing heart. It says love, acceptance and romance. So you have healed your heart, pile number 1. If you wanted to hear this thing, ki are you healed or not, then I'll say ki jo emotional wounds hai, they are healed. You are ready to fall in love again. You're ready to accept the other person. तो ये भी एक information आप में से कुछ लोगों के लिए है that you are healed. बट जो मेजर थीम यहाँ पर प्ले आउट होगा नवंबर के मंथ में वो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म वाला प्ले आउट होगा. आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी. और यू कैन इवन गेट अ रीडिंग डाउन फ्रॉम समवन, सम एस्ट्रोलॉजर और सम टैरो कार्ड रीडर, यू गेट अ रीडिंग फ्रॉम देम. तो ये मेजर थीम चलेगा. और देयर आर मेनी डेडलाइंस विच यू हैव टू वर्क फॉर. टाइम कंस्ट्रेंट्स तो है, बट टेक इट ईजी ऑन योर सेल्फ, ये भी गाइडेंस है. और जो भी चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी उन चीज़ों में अब आपको आसानी हो रही है, एक आपने ईजी वे आउट उनमें ढूंढ लिया. देन वी हैव द स्वान. इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्टिंग द साइकिक गिफ्ट्स. सो अगेन वी हैव द साइकिक गिफ्ट्स कार्ड हेयर. इट डज शो कि आपकी इंटुएशन स्ट्रांग है. आप जिस टैरो कार्ड रीडर या साइकिक के पास जाते हो उनकी इंटुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. दे व्हेन यू गो टू साइकिक रीडर और टैरो कार्ड रीडर दे क्विकली से समथिंग जो बड़ा ही आपको कनेक्ट हो जाता है और आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम क्विकली 1-2 सेंटेंसेस में, 1-2 बातों में ही मिल जाता है. सो इट्स दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द स्पिरिट और विद द कार्ड्स और विद द साइकिक रीडर. और अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है. आई फील कि जब आप वो साइकिक रीडर या टेरो कार्ड रीडर के पास जाते हो तो योर लाइफ ट्रांसफॉर्म्स, योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ट्रांसफॉर्म्स. एंड आई डू फील पाइल 1 कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कहे कि आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और आई डोंट बिलीव इन टेरो, बट छुप छुप के आप ये चीज़ें देखते हो. और
बट यू टेल अदर पीपल दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, और मैं इनमें विश्वास नहीं करता हूँ. बट वेन यू गो टू अ टेरो कार्ड रीडर और साइकिक रीडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ psychic reader or a tarot card reader, your life transformed. The way of looking, the way you look at life right now, it's really changed in the month of November after meeting this tarot card reader or after meeting this psychic reader. ऑल राइट, सो ये भी चीज़ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, ये कोई और साइकिक रीडर भी हो सकता है, कोई और टेरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, बट दे रियली ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड मेक अ चेंज इन योर लाइफ. सो दिस कैन बी सीन. एंड वी ऑल्सो हैव स्वान, लाइक स्वान. तो स्वान जो है वो प्योरिटी का सिम्बॉलिज्म है. So the tarot card reader or a psychic reader you may meet or you may go to or you may get a reading done from, या तो वो they are really pure beings. मतलब हर किसी का ना एक अलग होता है, डिफरेंट होता है प्योरिटी का एक देखने का नज़रिया कि व्हाट इज़ प्योरिटी. एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट प्योरिटी. हर पर्सन की डिफरेंट डेफिनेशन है प्योरिटी के बारे में. तो आपकी जो डेफिनेशन है प्योरिटी के बारे में, आपको वो फील होगा कि दैट दिस साइकिक रीडर और दिस टेरो कार्ड रीडर इज़ रियली प्योर. फॉर मी प्योरिटीज़ के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें या तो हो ही ना या तो बहुत ही कम हो, वो प्योरिटी में हम कह सकते हैं कि हैं. कईयों का कुछ और भी हो सकता है ना. और जो तामसिक चीज़ें ना खाए, जो किसी को मार के ना खाए, क्योंकि हमारे कल्चर में भी ये चीज़ है ना कि जो भी चीज़ चल सकती है, जो भी चीज़ तैर सकती है, जो भी चीज़ उड़ सकती है, हम उसको खाते नहीं हैं. हमारे कल्चर में है ये बातें. तो जो किसी को मार के ना खाए वो भी प्योरिटी में आ जाता है. बट इवन लाइक वी वेजिटेरियंस, हमारा भी जो खाना है वो पेस्टिसाइड डाल के बनता है. तो जो पेस्टिसाइड है उससे भी तो जीव जंतु मरते ही हैं. तो बट अगेन एक होता है कॉन्शियसली हम किसी को मार के खा जाएं. सो वो दैट इज़ नॉट प्योरिटी. अगेन दैट्स माई डेफिनेशन एंड वट एवर योर डेफिनेशन इज अबाउट प्योरिटी. तो उस अकॉर्डिंग यू विल फील कि दिस पर्सन, दिस साइकिक रीडर, दिस टेरो कार्ड रीडर इज़ रियली प्योर. सो अगेन एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट way of looking at things, right? Everyone has a different perspective, definition of purity. अच्छा, तो अब हम जो है मेन मैसेजेस पुल आउट करेंगे. सबसे पहले करियर. आप एजुकेशन में हो, जॉब, बिजनेस में हो, व्हाटएवर, यू आर गोना गेट अ कार्ड हियर. फाइल 1 का करियर कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर. Alright, okay. You have the 2 of Wands. Alright, you are happy. जो आपने एफर्ट करा उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है. अगर आपने बहुत अच्छा एफर्ट करा है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. अगर आपने कम एफर्ट करा है तो कम रिजल्ट मिल रहा है. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू फाइल 1 कि जहाँ आप अगर 100% एफर्ट डालो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड. जो भी आप कर रहे हो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. एक हाथ दो, एक हाथ लो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपनिंग. एंड इवन विद द 2 of Wands आई विल से कि अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही है. उस बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से यू आर गेटिंग द स्वीट फ्रूट. 2 of Wands ये भी शो कर रहा है कि यू हैव दिस बैलेंस्ड माइंड, यू हैव दिस, यू आर पैशनेटली वर्किंग, बट एज वेल एज कि आप जोश में होश नहीं खो रहे हो. आप अपना एनालिटिकल लॉजिकल माइंड भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो. एंड यू आर ऑल्सो वेरी पैशनेट टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर एजुकेशन, टूवर्ड्स योर जॉब, टूवर्ड्स योर बिजनेस. तो ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है. आप अगर जॉब में हो तो आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट करने को मिल सकता है. और वो ग्रुप प्रोजेक्ट सिर्फ 2 लोगों का हो, ज़्यादा नहीं. 1-2 लोग हैं, उनकी पार्टनरशिप है उस ग्रुप, वही ग्रुप प्रोजेक्ट. यहाँ पर 4-5 लोग नहीं नज़र आ रहे. और आई सीज की 2 लोगों का एक ग्रुप है और आप काम कर रहे हो उस 2 लोगों के ग्रुप में. सो दैट इज देयर. देन अबाउट फाइनेंसेस ऑफ पाइल नंबर 1. अगर आप खुद अर्न करते हो पाइल 1 तो ये आपके जो अर्निंग्स है उसको शो करेगा ये कार्ड. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस. ऑल राइट, so we have the death card here. Let me pull one more card. Clarification of death card. Okay, we have the hermit. So जो मनी आपका जा रहा था पाइल नंबर 1, like
यू कैन कंप्लेन दिस पाइल 1 कि मैं मनी तो अर्न करता हूँ या करती हूँ, बट मनी मेरे पास टिकता नहीं है, वो चला जाता है, वो यूज़ हो जाता है समहाउ, उसको मैं सेव नहीं कर पा रही हूँ, इट्स गोइंग. सो ये जो शिकायत है ये अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. नवंबर के मंथ में यू आर एबल टू सेव मनी, और मनी अच्छा आ रहा है आपके पास. it's not really huge amount of money, but it's not also very less money. ये एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ रहा है, जिससे आप अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेते हो, जिससे आप अपनी कोई मन पसंदीदा चीज़ें भी खरीद लेते हो, और साथ ही साथ सेव भी कर लेते हो. कहीं ना कहीं मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. तो जो पहले मनी आप सेव नहीं कर पा रहे थे, इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. इस चीज़ में ये हो रहा है कि नाउ यू आर एबल टू सेव मनी. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड अबाउट योर पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है. सो पाइल नंबर 1, वी हैव द 9 ऑफ कप्स. तो आप आउट ऑफ द वे जाकर अपनी फ्रेंडशिप निभाते हुए नज़र आ रहे हो. आप आउट ऑफ द वे जाकर अपने रोमांटिक रिलेशनशिप या इन जनरल रिलेशनशिप निभाते हुए नज़र आ रहे हो. और आई डू फील कि एक फेस्टिविटी यहाँ पर है. 9 ऑफ कप शोज इट्स अ फेस्टिव कार्ड. इनफैक्ट अगर आप अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हो क्योंकि दिवाली है, फेस्टिवल है, तो यू आर मेकिंग टाइम फॉर दैट एंड यू आर गोइंग इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू, राइट. हर किसी का मन नहीं होता रिश्तेदारों से, रिलेटिव से मिलने का, दोस्तों से मिलने का, पर अगर आपका मन है तो आप स्पेशली टाइम निकालोगे और जाओगे, चाहे कितना भी बिजी हो. एंड अगेन लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी. नंबर 19 ये शो भी कर रहा है कि आप जा रहे हो. you're going against your schedule, going against your routine to meet your friend, to meet your relative, to meet your sibling, to meet your loved one, to meet your friend, to meet your lover. आप आउट ऑफ द वे जाकर भी उनके पास जा रहे हो, अपना स्केड्यूल सारा साइड करके उनके पास जा रहे हो, समय उनके लिए बनाते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर. सो दैट कैन बी सीन. And if you are in a romantic relationship, if you are married, if you are in a committed or a romantic relationship, then I see कि relationship बहुत अच्छा जा रहा है. And again, you are communicating with them, you're understanding them, और again out of the way जाकर भी आप इस person के लिए चीज़ें कर रहे हो. And about your let's pull a card about your health, mental and physical health. Okay, we have 2 cards here जो अपने आप आए हैं. वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. रियली इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. बोथ आर ब्यूटिफुल बिकॉज दोनों का मिला के मैसेज बहुत अच्छा है. 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है, नंबर 10 हमेशा टेरो में एंडिंग्स को शो करता है. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज एंड ऑफ योर हेल्थ इशूज, मेंटल और फिजिकल हेल्थ इशू का एंड होता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे ही एंड नहीं हो रहा है, आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से एंड हो रहा है. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मैजिशियन शोज आपका खुद का एफर्ट, आपका खुद का, आपको आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता. पाइल नंबर 1 कोई भी नहीं जानता. इनफैक्ट डॉक्टर भी, साइंस भी नहीं जान सकती आपको आपसे बेटर. कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं जान पाता कि क्या आपके साथ गलत है, क्या बॉडी में रॉन्ग है, बट आपको पता लग जाता है. तो आप अपना कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करा लेते हो एंड देन यू रियलाइज कि ओ माई गॉश, दिस वॉज द प्रॉब्लम, आई हैड अ फीलिंग फॉर इट एंड इट हैपेंड विद मी एज वेल. आई मीन things happen. Everybody thought that I have some mental health issue, but मेरे को नहीं है सच कोई mental health issue and I'm grateful for that. But doctors thought I have a mental health issue. तब मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ. ये लास्ट ईयर हुआ था मेरे साथ, जुलाई अगस्त के मंथ्स में. oh my gosh, it was not a good time. For 2 months I was unable to sleep at night and doctors gave me medicine of sleep. उनको लगा मुझे स्ट्रेस टेंशन है, बट ऐसा नहीं था. और फिर 2 महीने बाद वो कष्ट को भोगने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एलर्जी, मेरे को सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि मेरे को हुआ है पहले, एलर्जी इशू मेरे को हुआ है, बट नो वन थॉट अबाउट इट. एंड व्हेन आई सेड कि अब मुझे ब्लड टेस्ट कराना है अपना एलर्जी वाला, IgE समथिंग वो टेस्ट होता है, तो हाँ वो बढ़ा हुआ आ रहा था वो IgE लेवल. एंड नाउ आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग वेल. बट होता है ऐसा, इवन साइंस कांट फिगर आउट एट टाइम्स दैट व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड दैट्स अगेन कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि साइंस भी साइलेंस से बनी. किसकी साइलेंस से बनी है? हम ह्यूमन बींग्स की साइलेंस से बनी है. और इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हर किसी से होती है. सो
आई एम नॉट गोना ब्लेम अ डॉक्टर और समथिंग, बट मेरी डेस्टिनी में था कि दुख भोगना, कर्म कटने थे जो कट गए। तो उसी तरह आपके भी जो है यहाँ पर कर्म कट चुके हैं। पाइल नंबर 1, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो होना था हेल्थ में वो हो चुका है, वो समय बीत चुका है, और जो कर्म कटने थे वो कट चुके हैं। अब वो कार्मिक डेट नहीं रहा तो ये बीमारी भी नहीं रह सकती। पाइल नंबर 1, ये बीमारी नहीं रह सकती, चाहे मेंटल है या फिर फिजिकल हेल्थ इशू है, ये नहीं रह सकता। इसका एंड होता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी आप इसका खुद एंड करते हुए नजर आ रहे हो। आप मे बी अगेन यू गेट अ टेस्ट डन और यू डू समथिंग विच जस्ट हेल्प्स यू आउट इन योर हेल्थ। तो आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से हेल्थ इंप्रूव यहाँ पर हो रही है। एंड अगेन वन ऑफ यू गाइज आस्क्ड मी इन द कमेंट ऑफ लास्ट वीडियो कि आई टोल्ड यू कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो अश्विनी डे पर जाओ, अगर आप कोई मेडिसिन शुरू करो तो अश्विनी डे पर शुरू करो, जब मून अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करे, बिकॉज अश्विनी इज अबाउट हीलिंग। तो उस दिन पर जो है डॉक्टर के पास जाना या अपनी मेडिसिन शुरू करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उस मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। या उस डॉक्टर के पास जाओ तो आपको राइट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो ये सब चीज़ों का होना यहाँ पर हो सकता है ऑन अश्विनी डे। तो समवन आस्क कि अच्छा ये तो कोई चीज़ मेडिसिन वगैरह शुरू करने का हो गया, अगर योगा शुरू करना है तो कौन से दिन पर शुरू करना चाहिए? देन ऐसे स्वाति दिन भी बहुत अच्छा है, बट बाकी उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है। जब भी आपको कोई लॉन्ग टर्म चीज़ स्टार्ट करनी है, जो आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई भी चीज़ है जो आप लंबे समय तक करना चाहते हो, स्टार्ट दैट थिंग ऑन उत्तर फाल्गुनी डे और उत्तर भाद्रपदा डे। उत्तर फाल्गुनी जो है इट्स अ नक्षत्र वेयर शंकर एंड पार्वती जी गॉट मैरिड। ऑल राइट, सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, मैरिज इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, इस वजह से उत्तर फाल्गुनी डे पे मैरिजेस होती हैं। तो और डायरेक्टली ऑपोजिट टू उत्तर फाल्गुनी है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। तो ये दोनों उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र सिमिलर रिजल्ट देंगे। तो कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़, चाहे वो योगा भी हो, एक्सरसाइज हो, या कोई बिजनेस हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, मैरिज हो, उत्तर फाल्गुनी या उत्तर भाद्रपदा दिन पर करना चाहिए, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलेगी। एंड अवॉइड पुनर्वासु डे, अवॉइड पुनर्वासु डे। कोई भी चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म तक करनी है उसको आपने लॉन्ग टर्म तक करनी है उसको आपने पुनर्वासु दिन पर नहीं करना शुरू करना। ऑलराइट, पुनर्वासु दिन पर कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़ शुरू नहीं करनी है। योगा जो है वो एक अगेन योगा एंड प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये स्वाति नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। स्वाति इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू विंड। सो आप स्वाति डे पर भी शुरू कर सकते हो, बट आई स्टिल से उत्तर फाल्गुनी उत्तर भाद्रपदा, और अगर कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको स्टार्ट करनी है। Alright, so that's there, and end of the deck में we have the 4 of cups. There is some opportunity which is coming, और out of the box आपको सोचना चाहिए, गाइडेंस है। और कोई आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर भी चलना चाहिए नवंबर के मंथ में, स्पेसिफिकली पाइल नंबर 1, क्योंकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपको लगे कि मेरी फील्ड से बहुत डिफरेंट है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गाइडेंस है, वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, और वो चीज़ आपको, वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। आप सिर्फ सोच रहे हो कि ये 3 ही चीज़ें हैं मेरे पास, बट ऐसा नहीं है। देर इज समथिंग एल्स एज वेल विच इज़ कमिंग टू यू, बट दैट्स रियली अनऑर्थोडॉक्स, दैट इज़ नॉट ऑफ योर फील्ड। ये काम आपके फील्ड का नहीं है, बट ये काम आपको फिर भी लेना चाहिए, गाइडेंस है। कुछ अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है, विच इज़ लाइक नॉट मे बी और नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। ऑलराइट, तो ये भी यहाँ पर गाइडेंस है। बी ब्रॉड माइंडेड, कोई भी वर्क अपॉर्चुनिटी आती है ग्रैब करो, इवन दो आपके फील्ड के ना भी हो, बट फिर भी आपको वर्क अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस हियर, क्योंकि इस चीज़ से आपको काफ़ी वेल्थ या इमोशनल सेटिस्फैक्शन या कुछ अच्छा तो मिल रहा है। ऑलराइट, so this is what we are getting for you, pile number 1. Last but not the least, let me pull one more card here, guidance card. So we have Archangel Raphael. It says provider of healing for mind, body and spirit. Again we have healing coming for you, pile number 1. We can definitely expect कि आपका अगर कोई भी mental health issue है, फिजिकल हेल्थ इशू है, वो हील होता हुआ नजर आ रहा है। थैंक्स टू आर्कएंजल रफेल, थैंक्स टू योर डेस्टिनी,
कि वो जो कार्मिक डेट था वो आपने हेल्थ के थ्रू पे ऑफ कर दिया. नाउ गुड हेल्थ इज देयर. एंड ऑल्सो अगेन यू आर गोइंग टू psychic reader or a tarot card reader, maybe Reiki healer as well, and they really help you out. जो चीज़ें beneath the surface है, जो आपके खुद के deep rooted psychological issues है, they kind of help you to let go of those things. तो यहाँ पर healing हो रही है mind, body और spirit. You can even do something spiritual, वो भी चीज़ हो सकता है. Alright, pile number 1. So yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically अगर हम देखें यहाँ पर तो Aquarius sign, Pisces साइन, इसकी तो हमने बात करी थी, और स्कॉर्पियो साइन भी, एंड आई से टॉरस. तो टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस, ये साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं प्रोमिनेंट आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट में या फिर D9 नवांशा चार्ट में. यानी इसके इन साइंस के अंदर आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, फिर उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. एंड आई ऑल्सो से वर्गो साइन एज वेल. सो वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हास्ता एंड चित्रा नक्षत्र. तो इन नक्षत्र में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे पायल नंबर 1 आपके चार्ट्स में. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know how this reading resonates, and also write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelet set, this bracelet set is available on my website. You can check the website out. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth date है वो Aries, Taurus, Gemini या फिर Libra season में किसी एक season में आता है. Let's get started with your reading. तो हम Oracle से शुरू करने वाले हैं. पहले एक ओवरव्यू लेने वाले हैं नवंबर मंथ का कि वो आपके लिए कैसा रहने वाला है. व्हाट आर यू डूइंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर, पाइल नंबर 2. एंड देन वील स्पेसिफिकली पुल आउट सम कार्ड्स फॉर योर करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप. सो ये है, ऐसे हम चलेंगे रीडिंग में. ऑलराइट, सो व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट आर दे डूइंग, happening for them. Okay, we have the Goblin, wounded human ego. All right, pile number 1, pile number 2. So I don't feel कि आपकी ego यहाँ पर जो है वो उस पर हमला हो रहा है. What I feel is that you may like say something to the other person जिससे उसकी ईगो जो है वो बाउंडेड हो जाए. सो बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज वी डोंट वांट यू नो लाइक मेक एनी ट्रबल है. सो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, पाइल नंबर 2, क्योंकि आप सच में किसी की ईगो को हर्ट कर सकते हो. और वही बात है कि ईगो माना अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छी बात ईगो होना. बट जब हम किसी को किसी भी तरह से हर्ट पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं, तो वो भी पाप कर्म है और उसका भी हमें पे ऑफ करना पड़ेगा. तो आप अपने जो शब्द हैं उनको ज़रा ध्यान से यूज़ करना. और नवंबर के मंथ में ऑफ कोर्स इट्स दिवाली और यू नो मैरिज सीजन इज here, so you will meet people, you will meet your relatives, you will meet ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो जिनसे आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग है. बहुत कम लोग कहेंगे कि हमें अपने रिलेटिव्स पसंद है, बहुत कम लोग. ज़्यादातर ये कहते हैं हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वो ज़मीन के लिए लड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जिनके साथ हमारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ही टाइट, उनके साथ हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ कर दें जिनसे वो हर्ट हो जाए, तो
तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ढीले नहीं पड़ रहे, वो और टाइट हो रहे हैं, और वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, चाहे फिजिकल हेल्थ के थ्रू, चाहे मेंटल हेल्थ के थ्रू, या किसी भी तरह आपको कार्मिक डेट पे ऑफ करना पड़ेगा. तो बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स यू यूज. देन वी हैव द जॉय कार्ड हियर. सी आई टोल्ड यू, आपके लिए तो जॉयफुल टाइम है. आपकी यहाँ ईगो नहीं टूट रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. बट आप कई बार हम खुशी खुशी में कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जो दूसरे को शायद पिंच करे, हर्ट करे. और अगेन पाइल नंबर 2, आई फील कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो सबके साथ अच्छा करना चाहते हैं, जो भगवान जिस रास्ते पर हमें चाहते हैं कि हम इस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर आप चलना चाहते हो. आप श्रीमत फॉलो करना चाहते हो, आप एक सही रास्ते पर चलना चाहते हो. पर आप ये भी चीज़ देखो पाइल 2 कि सही रास्ते पर चलने के लिए भी ताकत चाहिए. तो जैसे कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों में ये चीज़ है कि ब्राह्मण मुंहफट होता है. ब्राह्मण जो है डायरेक्ट कोई भी चीज़ कह देगा. अगर किसी दिन ब्राह्मण मीठा बोलने लग जाए तो समझ लो वो ब्राह्मण जो है गलत रास्ते पर खुद भी जा रहा है. क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता है वो दूसरों को अनबायस्ड ओपिनियन दे और उनको सही रास्ता दिखाए. सच जो है ज़्यादातर कड़वा होता है. तो इवन दो यू आर सेइंग द राइट थिंग पाइल नंबर 2, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसको वो राइट चीज़ समझा रहे हो. पात्र देख कर ज्ञान दो. तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्राह्मण परिवार में पैदा होना पड़ेगा तब आप ब्राह्मण बनोगे. ब्राह्मण का सिंपल मीनिंग ये है जो नॉलेज को अपने अंदर धारण करना चाहे, जो नॉलेज लेना चाहता हो, जो क्यूरियोसिटी रखता हो, वो ब्राह्मण है. तो यू आर अ जॉयफुल पर्सन. ब्राह्मण जीवन ही जो है वो उमंग उत्साह का है, खुशी का है. तो आप you seem really happy, you seem really joyful pile number 2, and you want to follow the righteous path, you want to do good to other people. बट आपको ये सोच के चलना चाहिए कि आप किससे कह रहे हो वो सही बात. क्या वो इंसान उस सही रास्ते पर चल भी सकता है जो आप उसको एडवाइस दे रहे हो, या जो भी आप उसको कह रहे हो, क्या वो सच में उसको फॉलो कर सकता है. तो ज्ञान भी पात्र देख के देना चाहिए, अदरवाइज आप कार्मिक डेट क्रिएट कर लोगे दूसरे के साथ. Then we have the owl, we have deception, we have wisdom. I told you pile number 2. You guys are really wise people, you want to follow the rightest path. You are someone who is strict with your own self. आप खुद के एक वर्स्ट क्रिटिक भी हो पाइल नंबर 2, बिकॉज आप परफेक्शन अपने अंदर चाहते हो, परफेक्शन अपनी चीज़ों में लाना चाहते हो. एंड यू आर फुल ऑफ विजडम, यू आर फुल ऑफ विजडम पाइल 2. आपको पता है क्या सही है क्या गलत है. सो दैट्स डेफिनेटली देयर. And the owl also shows कि you see how the other person is. आप clearly देख पाते हो कि दूसरा कैसा है कैसा नहीं है. एक ही नज़र में आप जान पाते हो कि ये ठीक है या नहीं ठीक है. आप एक नज़र में जान पाते हो. You have this ability, और ये ability नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा strong है. So that can be seen. And again November month is really joyful for you. November 2024 is really good for you. आप एक अच्छा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो, जॉयफुल टाइम आपके लिए नज़र आ रहा है. प्लस आप अपनी विजडम को और भी इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स. आई ऑल्सो फील कि नवंबर मंथ में आप रात को कई सारी चीज़ें सुनते हो, देखते हो, जो आपकी विजडम को और इम्प्रूव करता है. सो दैट्स देयर. वी हैव ओगमा, इट सेज वॉच योर वर्ड्स. ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ये तो पहले भी कर ली बात कि यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स पाइल नंबर 2. यू हैव टू, बिकॉज यू मे से समथिंग विच विल पिंच अदर पीपल एंड कार्मिक डेट. पहली कार्मिक डेट इतना चढ़ा पड़ा है आत्मा पर, बोझ इतना चढ़ा पड़ा है कि बीमारियां रुक नहीं रही है. हाँ, मेंटल हेल्थ इशू रुक नहीं रहे हैं. वैसे ही इतना चढ़ा पड़ा है, आप और चढ़ा लो अपने ऊपर, वो भी शब्दों की वजह से. सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. वॉच योर वर्ड्स. दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग. वॉच योर वर्ड्स. अगर आप कोई बात कहना भी चाहते हो तो उसे थोड़ा, वैसे तो अगेन पात्र देख के बात कहो. जो भी सामने है उसको देख कर कि ये एडवाइस वो सुनेगा, मानेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा. जिस वे में मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, क्या वो उसको
उसी वे से लेगा, एक डिफरेंट वे से ले जा सकते हैं, एक नेगेटिव वे से ले जा सकते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है. सो बी केयरफुल अगेन विद योर वर्ड्स एंड विद द अदर पर्सन, बी केयरफुल. नेक्स्ट वी हैव विजनरी. सो अगेन यू हैव अ विजन, एंड यहाँ पर जैसे वी हैव अ हालो, आई थिंक इसको हैलो या हालो कहते हैं, जैसे ये वाली चीज़. एक होता है रतन जड़ित ताज, एक होता है लाइट का ताज. तो लाइट का ताज उसके सर पर दिखाते हैं, जो जैसे देवी देवताओं के सर के अराउंड जो है लाइट का ताज भी होता है, रतन जड़ित ताज भी होता है. तो वो काफ़ी इनलाइटेंड और विकारों से दूर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार से दूर है ना. जो होते हैं देवी देवता, वो उनकी महिमा यही है ना कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम. तो उनके लाइट का ताज है. तो यहाँ पर आपके लिए भी विद द विजनरी कार्ड फाइल नंबर 2, आप भी यू आर रेडिएटिंग दिस लाइट. ये सच में तो हालो ना दिखे, बट यू आर रेडिएटिंग दैट लाइट. आपकी बहुत लाइट जॉयफुल एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और विजडम यहाँ पर है आपके पास, और उस विजडम से आप अपनी लाइफ यहाँ जीते हुए नज़र आ रहे हो. आप एक बेटर वर्जन बनते हुए नज़र आ रहे हो, अपने खुद के बेटर वर्जन बनते हुए नज़र आ रहे हो. और क्लैरिटी आपके माइंड में काफ़ी है, दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई शुड नॉट डू दैट. एक क्लैरिटी भी है मन में. सो ऑल दैट इज़ देयर, एंड यू हैव अ विजन इन योर लाइफ कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर नहीं चलना. और आप दूसरे को भी जो हो वो विजन दे सकते हो. आपके पास ये एबिलिटी है कि आप दूसरे को भी गाइड करो, दूसरे को भी एक सही रास्ते पर आप लेकर जाओ. सो यू हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी विद इन यू, यू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज विद इन यू. सो दैट कैन बी सीन. यहाँ पर अब हम टेरो से कार्ड्स पुल आउट करते हैं आपके करियर के बारे में, फिर फाइनेंसेस, फिर पर्सनल लाइफ, और फिर उसके बाद हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सो क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है करियर के बारे में? इफ़ यू आर इन एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन. फाइल नंबर 2, नवंबर मंथ, करियर. Okay, so we have the 7 of Pentacles. 7 of Pentacles is really an amazing card. It's a beautiful card. It shows कि जो भी आपने हार्ड वर्क करा था उसका अब आपको स्वीट फ्रूट नवंबर के मंथ में मिल रहा है. जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे थे कि कब ये चीज़ होगी, मैंने ये चीज़ के लिए एफर्ट बहुत करा है, कब इसका गुड रिजल्ट मुझे आएगा. अंगूर अब खट्टे नहीं, अंगूर अब मीठे हैं. यू आर हार्वेस्टिंग. So like November month is a harvest season for you. pile number 2, ये आपके लिए हार्वेस्ट सीजन है. जो भी अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में जो आपने एफर्ट्स करे थे उसका आपको गुड रिजल्ट मिल रहा है नवंबर के मंथ में. जॉब में थे तो जॉब में आपको गुड रिजल्ट मिल रहा है आपके हार्डवर्क का. एजुकेशन में तो एजुकेशन में जो आपने एफर्ट करे थे उसका आपको हार्डवर्क का अच्छा गुड रिजल्ट मिल रहा है. वेट का टाइम खत्म हुआ, अब हार्वेस्ट सीजन है. स्वीट फ्रूट ऑफ हार्डवर्क आपको मिल रहा है. अबाउट फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग्स के बारे में कार्ड होगा. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है उसकी अर्निंग, उस पर्सन की अर्निंग के बारे में ये कार्ड होगा. वी हैव द चैरियट. चैरियट इज अगेन शोइंग कि अर्निंग ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है. और ये इनकम इफ़ यू आर in a committed relationship, or if you are in a marriage, specifically in a marriage, or if you are living in a live-in relationship, तो आप और आपकी पार्टनर दोनों की इनकम काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है. मे बी यू आर गेटिंग अ बोनस, यू आर गेटिंग हायर पे, यू आर अर्निंग मोर. ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. अगर आप इफ़ यू आर सिंगल देन एंड इफ़ यू आर अर्निंग, तो आपकी यहाँ पर अर्निंग इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. अगर आप खुद अर्न नहीं करें तो आपके जो भी परिवार में अर्न करते हैं लोग, उनकी अर्निंग बहुत यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है. बहुत हाई अर्निंग यहाँ पर नज़र आ रही है. पहले से काफ़ी ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ. क्या ओके,
वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो रोमांटिक, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड, देन इट शोज़ कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. एक पैशनेट रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन नज़र आ रही है. एंड देर इज़ दिस, I should say love is in the air. Love is in the air for you, pile 2, and you're experiencing love. कई बार ऐसा होता है ना, we know our partner for so long कि हम बोर हो जाते हैं. अब क्या बात करें एक ही इंसान से, अब हम क्या बात करें, जो सारी बातें तो कर ली, अब क्या बात करें. तो वो एक कुछ चला सा जाता है. जैसे नया नया रिलेशनशिप होता है, वी गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ईच अदर. तो वो शुरू का जो स्पार्क होता है वो आप स्टिल फील करने वाले हो नवंबर के मंथ में. इवन इफ यू आर विद दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर स्टिल गोना फील दैट स्पार्क इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर सिंगल, देन आई सी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी पर्सनल लाइफ में, और जो आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके परिवार के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप बहुत इन्वॉल्व हो सभी के साथ. आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही हो उनके साथ. आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो अपने परिवार के साथ, और देयर इज़ नो डल मोमेंट एंड अ हैप्पी टाइम कैन बी सीन हियर. एंड आपको अपने परिवार के बारे में कई चीज़ों के बारे में पता लग रहा है. मतलब आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कई चीज़ों, अपने पेरेंट्स के पास्ट के बारे में पता लग रहा है, आपको अपने सिबलिंग्स के पास्ट के बारे में पता लग रहा है. तो कई चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी अपने फैमिली के बारे में. सो दैट कैन बी सीन. और यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो हाँ, आप कोई पर्सन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो. क्योंकि सबसे पहले हम अगर किसी को देखें तो हमें उसके नेचर के बारे में नहीं पता होगा, पर हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे. ना करते भी, ना चाहते हुए भी फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले सामने आता है. तो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम. हर किसी को ब्यूटी पसंद है, हर किसी को. तो जो भी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, वो नवंबर के मंथ में आपसे बड़ा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे. आप उनके लिए यू आर लुकिंग नो लेस देन अ क्वीन इन द मंथ ऑफ नवंबर. मे बी आप इस तरह अपने आप को क्या ही करते हो, आपका इस तरह का फैशन सेंस है, या इन जनरल यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल और हैंडसम. यू आर अट्रैक्टिंग अदर पीपल टूवर्ड्स यू इन अ रोमांटिक मैनर. यू आर अट्रैक्टिंग अदर पीपल टूवर्ड्स यू. ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है इफ यू आर सिंगल. ऑलराइट. एंड सो लाइक दिस कैन बी सीन. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये शो करे कि आपका कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा जो है अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ रिलीफ. एंड अबाउट योर हेल्थ, पाइल नंबर 2. हाउ इज पाइल नंबर 2's हेल्थ? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. ओके, सो we have the 3 of wands. All right, 3 of wands here shows कि या तो आप काफ़ी समय से अपनी हेल्थ को लेकर, और आई शुड से आप अपनी लाइफ को अपनी हेल्थ से प्लान करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बी अगेन वेरी ऑनेस्ट हेयर कि जैसे आई गेट एक्नी. ऑल राइट, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो गर्म है. आयुर्वेदिक मेडिसिन यूजुअली गर्म होती है, तो अगर मैं उसको लेती हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन को, तो मेरी वो जो एलर्जी वाली चीज़ है या वो जो स्नीजिंग वाली चीज़ है वो काम डाउन रहती है. मुझे ठंड बहुत लगती है तो मुझे गर्म मेडिसिन खानी पड़ती है. बाकी आई ऑल्सो डू प्राणायाम, योगा, वो सब तो है ही, बट कार्मिक डेट है, पे ऑफ तो हेल्थ से करना ही पड़ेगा. एंड यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जिसका असेंडेंट 6th हाउस में. 6th हाउस वैसी प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज, डिजीजेस का, और असेंडेंट हमारी फिजिकल बॉडी है. तो या आई हैव दिस कार्मिक डेट विद माई हेल्थ, विद माई बॉडी. तो इफ़ आई एम डीलिंग विद एक्ने और आई नो कि मुझे फेस वाली शूटिंग करनी है, फिल्मिंग करनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन कम कर देती हूँ, या बहुत कम, या एटलीस्ट कुछ तो कम करती हूँ, जिससे जो एक्ने है वो काम डाउन हो जाता है, वो ज़्यादा उभर के नहीं आते पिम्पल. सो दैट इज़ व्हाट आई डू. तो उसी तरह आप भी पाइल नंबर 2 अपने
कई चीज़ें हेल्थ के साथ प्लान करते हो। आप भी कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज से डील करते हो पायलटू जो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा है और आपके काम के बीच में क्लैश करते हैं। सो आई डू सी विद द 3 of Wands, you're planning your day out or you're planning your work week according to your health। क्योंकि देखो वही है सैटर्न और मार्स। सैटर्न है कर्म, सैटर्न है आपका करियर, 10th और 11th हाउस को रूल करता है। 10th हाउस है करियर का, 11th हाउस है गेन्स फ्रॉम योर करियर, नहीं मनी का। सैटर्न मार्स के बिना कुछ नहीं कर सकता। मार्स होता है फिजिकल बॉडी, मार्स है हमारा मोटिवेशन फैक्टर भी, पर मार्स सबसे पहले एरीज साइन को रूल करता है और एरीज जो है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में एग्जॉल्टेड फील करता है, 10th हाउस में एग्जॉल्टेड फील करता है, अपना फुल दिग्बाला फील करता है। क्यों ऐसा क्यों है? सैटर्न के साइन में वो हमेशा अपना हाई दिग्बाला फील करता है। 10th हाउस कैप्रिकॉर्न साइन में वो एग्जॉल्टेड है। रीजन यही है क्योंकि हेल्थ चाहिए हमें कर्मा परफॉर्म करने के लिए। सैटर्न कर्मा का सिग्निफिकेटर है, हमारे एफर्ट्स को शो करता है, कर्म को शो करता है, हमारे करियर को शो करता है। करियर में अच्छा करना है तो हेल्थ चाहिए। That's why Mars get exalted in Capricorn. So here it does show with the 3 of Wands, you're doing the same thing. You're planning your career or you're planning your day out. You are planning things with your family according to your health. इसको सिंपल लैंग्वेज में ले, सो वी फीमेल्स वी हैव दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? सो उसमें भी जो है डॉक्टर्स को ज़्यादा पता है, यार मुझे इतना नहीं पता, कि ओव्यूलेशन टाइम होता है और ऑल दैट स्टफ, वो साइकिल होता है। तो कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें बहुत एक्टिव है, जिसमें माइंड बड़ा क्लियर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो यू आर डूइंग दैट, लाइक यू आर प्लानिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, एंड वो प्लान बड़े अच्छे जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। व्हाटएवर यू आर प्लानिंग, वो अपनी हेल्थ को साथ में रखते हुए वो बहुत अच्छे प्लान्स नज़र आ रहे हैं आपके लिए। एंड इवन यू कैन हैव सैटर्न मार्स कंजंक्शन, या मार्स इज एस्पेक्टिंग योर सैटर्न, दैट कैन बी योर प्लेसमेंट इन योर मेन बोर्ड हॉरोस्कोप या फिर D12 या D9 नवांशा चार्ट में। और हाँ, जब भी मार्स सैटर्न को एस्पेक्ट करेगा, लॉन्जिटिविटी को बुचर करेगा। सैटर्न इज लॉन्जिटिविटी, मार्स इज द शार्प ऑब्जेक्ट, यानी बार बार हेल्थ खराब होना इसका सिग्निफिकेटर है सैटर्न मार्स कंजंक्शन या मार्स एस्पेक्टिंग सैटर्न। एंड मार्स एस्पेक्टिंग सैटर्न या सैटर्न मार्स कंजंक्शन ये भी शो करता है दैट यू कैन बी एन इंजीनियर, यू कैन बी वर्किंग इन IT कंपनी, यू गॉट सम टेक्निकल एजुकेशन डन, तो ये भी शो करता है। बट हाँ, 3 of Wands ये शो करे आप लॉन्ग टर्म से ऐसा हो सकता है कोई मेडिसिन ले रहे हो और अभी भी लेते हुए नजर आ रहे हो, और उन लॉन्ग टर्म्स जो आपकी मेडिसिन चल रही है, मतलब कुछ महीनों से जो चल रही है आपकी मेडिसिन, आपको गुड रिजल्ट दे रही है, यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ दैट मेडिसिन। यहाँ पर हेल्थ इशू आपको इतना तंग करता हुआ एज सच नहीं नजर आ रहा। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर अंडर कंट्रोल, ये यहाँ पर नजर आ रही है चीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस डेक से क्या इंफॉर्मेशन या गाइडेंस है आपके लिए? फाइल नंबर 2. All right, we have celebration card, let go and have fun. Pile number 2, this is a guidance for you. Let go and have fun. कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कई बार हमें कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हमें नहीं अच्छे लगते। जिस जगह हम जाने वाले होते हैं उस जगह पर वो लोग भी हैं जो अच्छे नहीं लगते और वो लोग भी हैं जो अच्छे लगते हैं। तो आप उन लोगों के लिए जाओ जो लोग आपको अच्छे लगते हैं। सो लेट गो ऑफ दोज पास्ट हर्ट्स, और इसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैं नहीं जाना चाहता इसके पास, पर वहाँ पर मेरे मन पसंदीदा लोग भी हैं, तो एटलीस्ट सुन के करके जाओ, राइट? सो ये आपके लिए गाइडेंस भी है। सो लेट गो ऑफ पास्ट एंड हैव फन, डोंट बी सो pessimistic, or don't hold your past so close to you. Pile number 2, that's a strong message. And have fun, celebrate, और सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। तो यस, नवंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी सेलिब्रेटोरी नज़र आ रहा है। बहुत सारी जो फेस्टिव सीजन अभी है, दिवाली है नवंबर में, तो अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आई फील यू आर सेलिब्रेटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे जो सोल्स हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर हैप्पी। सो that's there, beautiful, it's a
joyful time for you, pile number 2. It's a really joyful time. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. And again, be careful with your words. सोच कर सोचो, सोच कर बोलो. ये आपके लिए गाइडेंस है. जो भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, ये गाइडेंस है. ऑल राइट. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई से द साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ एक्वेरियस, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ लिब्रा, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं. और देखो मैंने ऑपोजिट साइंस बोला है. एरीज और लिब्रा ऑपोजिट साइंस है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न ऑपोजिट साइंस है, एक्वेरियस भी है, उसके ऑपोजिट लियो भी है. तो लेट्स टेक लियो एज वेल. तो ये जो साइंस हैं, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. इन साइंस में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जो है वो ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड एरीज में वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु एंड पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी. और लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. और कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है सतभिषाक में. और फिर सतभिषाक और धनिष्ठा नक्षत्र स्पिल्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. फिर उसके बाद धनिष्ठा, ओ माय गॉश व्हाट एम आई सेइंग, फिर से लेते हैं. धनिष्ठा, सतभिषाक और पूर्वा, भद्रपदा आता है एक्वेरियस में. सो या दैट वाज इट. ये नक्षत्र, ये साइंस प्रोमिनेंट है आपके चार्ट्स में. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are also available on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थ डेट है वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस सीजन में किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो सबसे पहले हम जो है कुछ ओरेकल कार्ड्स पुल आउट करेंगे टू गेट द ओवरव्यू. लाइक नवंबर मंथ में आप क्या चीज़ें कर रहे हो पाइल 3, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. एंड देन we'll specifically pull out cards for your career, your finances, personal life, health, and then हम end करेंगे reading का with a guidance card. What is happening for pile number 3? All right. We have stand still. Beautiful and very different, I'll say. क्योंकि November is the month of Diwali, festive season, marriage का भी season अब चल रहा है, wedding season is up, and there is a card which says stand still, Shanti का card. Then we have success. So again, success is on your card, pile number 3. And then we have release card. Okay, release card. What I really feel is that pile 3 की इतने सारे chaos में या इतने सारे शोर में या इतनी बिजी स्केड्यूल्स जो सभी के हैं, या इतना जो हम जैसे सोशल मीडिया पर आज की डेट में हम बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं कि अच्छा इस पर्सन की लाइफ में ये हो रहा है, ये फेस्टिविटी हो रही है, आज यहाँ तैयार होकर जा रहे हैं ये. सो यू आर सीइंग एवरीथिंग, बट देन यू हैव दिस लाइफ ऑफ योर्स जो काफ़ी ज़्यादा काम है, कंपोज्ड है, पीसफुल है, शांति से भरी जिंदगी है नवंबर के मंथ में, स्पेसिफिकली नवंबर के मंथ में. एंड यू हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक. सो शायद सभी के लिए बहुत
बिजी, फेस्टिविटी से भरा ये नवंबर का मंथ हो, आपके लिए डिफरेंट है पाइल 3। आपको एक टाइम मिल रहा है अपने लिए जहाँ आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो अपने ऊपर, आप अपने आप को और जानने की कोशिश करते हो, आप अपने ऊपर वर्क करते हो, अपनी बेटरमेंट की तरफ ध्यान देते हो। जो छुट्टियां भी आएगी नवंबर के मंथ में, या आप खुद अगर कोई छुट्टी भी लेते हो, तो आप ज़्यादातर समय अपने आप के साथ बिता रहे हो, दूसरों के साथ इतना समय बिताते हुए नहीं नज़र आ रहे। कहते हैं ना, साइंस जो है वो साइलेंस से बनी है, तो आप भी कुछ साइलेंस में क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है। सो लाइक यू आर गेटिंग सम आइडियाज और यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन दिस स्टेट ऑफ साइलेंस। साइलेंस का मतलब मुंह से भी साइलेंस, मुंह से भी ज़्यादा ना बोलना और मन भी ज़्यादा ना बोले, मन भी इधर उधर भटके ना। तो कहीं ना कहीं साइलेंस के थ्रू यू हैव सम आइडियाज जो फिर आप अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हो एंड देन यू गेट सक्सेस। आई डू फील ये जो रिलीज कार्ड है ये शो करे जो साइलेंस में अपने लिए आपने जो आइडियाज क्रिएट करे, यू नोट डाउन दोज थिंग्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू रिलीज दैट फ्रॉम योर माइंड एंड यू राइट दैट थिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और समय आने पर आप उस चीज़ को, जो पीस ऑफ पेपर पर वो प्लान है, उसको आप रियल लाइफ में कन्वर्ट करो एंड यू गेट सक्सेस। तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और एक और बात होती है, जब सभी बिजी होते हैं ना अपनी लाइफ में, मतलब बिजी इन द सेंस करियर में नहीं, अपने इधर उधर के कामों में जो बिजी होते हैं, वो एक समय होता है जहाँ पर आप आगे निकल सकते हो दूसरों से। मतलब अगेन इट मे साउंड अ लिटिल सेल्फिश बट दिस इज व्हाट इट इज। कहते हैं ना कई लोग कि लाइफ इज अ रेस, अगर दौड़ोगे नहीं तो दूसरे तुम्हें पीछे छोड़ के निकल जाएंगे आगे। सो ये जो नवंबर का मंथ है, जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी काम आप करते हो, इसमें आप बहुत आगे निकल सकते हो दूसरों से, क्योंकि दूसरे बिजी होंगे अपने घर परिवार में, बिजी होंगे अपनी दूसरी कमिटमेंट्स में। आप इस समय पर फ़ायदा उठा सकते हो। आप कहीं ना कहीं वैसे भी स्टैंड स्टिल, ये कार्ड आ गए जो कि शो करे आप वैसे भी ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व दूसरी जगह दूसरे लोगों के साथ इतना नज़र नहीं आ रहे हो। और इस वजह से जो आप आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हो साइलेंस में बैठ के, उससे आपको सक्सेस मिल रही है। उन आइडियाज़ को आप एक पीस ऑफ पेपर पर रिलीज़ करते हो, लिखते हो, और उन आइडिया को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हो, और आप दूसरों से अपने, अब जो भी फील्ड में आप हो, आप दूसरों से आगे निकल जाते हो उस फील्ड में। सो दैट इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग। सो इस एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पाइल नंबर 3, okay, so we have 4th house. We have dining room and kitchen, mother, home, character, vehicles, forgiveness, enjoyments, end of life, real estate, relatives, happiness, heart और breast area, सत्वा। सो बेसिकली 4th हाउस आया हुआ है, और जो इस पर लिखा हुआ था वो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो 4th हाउस जो है वो मोक्षा हाउस है। पहली बात तो 4th हाउस इज अ मोक्षा हाउस। इट्स द हाउस ऑफ रेस्ट, स्लीप, nourishment. It's the house where Jupiter feels exalted. Cancer sign में Jupiter feels very good. So Jupiter होता है wisdom, Jupiter होता है अध्यात्म, यानी अगेन स्पिरिचुअलिटी। Jupiter होता है गुरु, philosophy. So you are getting that wisdom when you stay at home. आप एक अपने अंदर के गुरु को जगाते हो, अपने अंदर के एक मेंटोर को, अंदर के बुजुर्ग को आप जगाते हो। जैसे अंदर हम सभी के एक बच्चा, उसी तरह एक बुजुर्ग भी, आत्मा जो है उसके अंदर कितने पास्ट लाइफ के संस्कार और जो सिचुएशंस थी पास्ट लाइफ की, वो सारी आत्मा में भरी हुई है। कितनी वंडरफुल बात है ना, इतनी छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा, और उसके अंदर सब ये पार्ट जो है भरा हुआ है। तो जो आपकी पास्ट लाइफ्स थी, पास्ट लाइफ की विजडम थी, आप उसको अभी जगा रहे हो नवंबर के मंथ में। नवंबर मंथ में यू आर एट होम, यू आर लाइक एट पीस, यू आर एट होम, यू आर नॉट डूइंग सो मैनी थिंग्स। ऐसा नहीं है, दूसरे बहुत बिजी हो सकते हैं, आप बिजी नहीं नज़र आ रहे, आप घर पे ही नज़र आ रहे हो, या फिर आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है, जहाँ पर आप अकेले हो, आप इस ऐसी जगह पर नज़र आ रहे हो।
और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप पीसफुल हो, आपकी नींद ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, तो अच्छा एक समय आप बिताते हुए नज़र आ रहे हो नवंबर के मंथ में. एंड अगेन यू आर स्पेंडिंग टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, यू आर इन साइलेंस, यू आर मेकिंग न्यू प्लान्स. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सम ऑफ यू कैन इवन buy, or some of your relative maybe, pile number 3, buys a real estate. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड relatives are coming in your house. आप भी दूसरों के घर जा सकते हो, आप भी relatives के घर जा सकते हो, pile number 3. बट यहाँ ऐसा ज़्यादा नज़र आ रहा है with the cards कि आपके घर पे ज़्यादा relatives आए, आप इतने relatives के घर पर नहीं गए हो, आपके relatives आपके घर आए हैं. That can be seen here. एंड सम ऑफ योर रिलेटिव्स हैव ऑल्सो बॉट न्यू व्हीकल्स, और आपने कोई नया व्हीकल बुक कराया और वो नवंबर के मंथ में आ रहा है. दैट कैन बी सीन हियर. बट यूजुअली यू आर फ्री इन नवंबर मंथ, यू आर नॉट सो बिजी इन नवंबर मंथ. समथिंग मोर फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक. ओके, लेट मी पुल दिस कार्ड. Aries. Okay. Aries, we have ruler, we have Mars, we have independent, we have practical, enterprising, courageous, self-centered, structured, planning, extreme, leading. It's the fire element. So अभी भी जो है घर पे बेल बजी है. Someone comes, so मम्मा जो है वो देख लेंगी, so I should not worry. So with the Aries sign here, यहाँ पर ये इंडिकेशन है. अगेन Aries साइन हमारे सिर के एरिया को शो करता है, हेड एरिया. शरीर को भी शो करता है बट स्पेसिफिकली हेड एरिया, इस एरिया को शो करता है. यहीं पर ही हमारे 5 इंद्रियां भी है. तभी जो है राहु इज द हेड, क्योंकि राहु 5 इंद्रियों का रूलर भी है. केतु इज द टेल, द स्पाइन, वेयरएज दिस इज ऑल्सो राहु. तो राहु 5 इंद्रियां हैं. यहाँ पर एरी साइन भी 5 इंद्रियों को शो कर रहा है. आई फील कि आपको कोई ऐसा चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है, या बहुत कोई अपनी तरफ चीज़ बुला नहीं रही है. आपको चीज़ें इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रही है. जो चीज़ें आपको पहले अट्रैक्टिव लगती थी, कैसा होता है ना कि बचपन में हमें शौक होता है रावण दहन देख कर आने का, रावण जलते हुए देख कर आने का. राम से भी ज़्यादा रावण की जो है ना वो एक शौक होता है कि देख के आऊँ, रावण को देख के आऊँ, रावण के साथ फोटो खिंचा कर आऊँ, रावण को जलते हुए देख कर आऊँ, पटाखे देख कर आऊँ. एज वी ग्रो एंड मैच्योर वही सेम चीज़ हम सालों साल देखते रहते तो वी गेट बोर्ड, होता ही है. तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में, कि जो चीज़ें आपको बहुत एक मज़ा देती थी, एक हैप्पीनेस देती थी, वो चीज़ें अब आपको थोड़ा रिपीटेटिव और थोड़ा बोरिंग लगनी शुरू हो चुकी है. एंड नाउ यू वांट टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नाउ यू वांट टू डू समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विच इज़ न्यू, विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. राहु अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है. तो यू कैन इवन हैव राहु इन द असेंडेंट पाइल नंबर 3. सो दैट्स देयर. और राहु इज इन द एरीज साइन, ऐसा भी हो सकता है पाइल 3 आपके केस में, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या नवांश या फिर D12 चार्ट में. सो दैट्स देयर. एंड जैसे एरीज साइन ये भी यहाँ पर शो कर रहा है कि यू आर एक्टिव, यू आर फिजिकल हेल्थ इज़ डूइंग गुड, और मेंटल हेल्थ भी जो है यहाँ अच्छी नज़र आ रही है. और आपके पास ऐसे आइडियाज़ है जो आप सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मार्स है वो एक्शन ओरिएंटेशन है. मार्स वही चीज़ करेगा जो प्रैक्टिकल होगी, तभी तो मार्स एक्शन ओरिएंटेशन को शो करता है. सो यू हैव प्रैक्टिकल प्लान्स विद यू, एंड दोज प्लान्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू योर मदर पाइल नंबर 3. मदर या किसी मदरली फिगर से भी वो चीज़ें कनेक्टेड हो सकती है. मदर कैन टेक सम मेजर लाइफ डिसीजंस ऑफ योर ओन लाइफ. मतलब आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ के डिसीजन मदर से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, किसी मदरली फिगर से काफ़ी कनेक्टेड हो सकते हैं. बट हियर आई डू सी विद द एरीज साइन दैट यू कैन डू समथिंग विच इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, विच इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, विच इज़ वेरी न्यू. आपके पास ऐसे नए आइडियाज़ आ रहे हैं. सो दैट कैन बी सीन हियर. एंड यू आर अगेन वेरी प्रैक्टिकल, यू आर प्लानिंग थिंग्स आउट, यू आर मैनेजिंग थिंग्स रियली वेल. और आप एक एक्सट्रीम में जाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो. एक होता है बैलेंस, कि एक वर्क लाइफ बैलेंस. यहाँ पर आप एक एक्सट्रीम में जा रहे हो, आपका वर्क पर ज़्यादा ध्यान है, घर पर
फेस्टिवल्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं, आपका वर्क पर एक्सट्रीम में जाते हुए नज़र आ रहे हो, वर्क के एक्सट्रीम में जाते हुए नज़र आ रहे हो. सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है. लेट मी पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर यू नाउ. करियर रिगार्डिंग सबसे पहले हम लेंगे कार्ड. जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. पाइल नंबर 3. What's happening for pile number 3 in terms of career? Okay. We have the King of Swords. What did I told you? What did I told you? Pile number 3. I told you that you are very active in your career. आपके जो करियर डिसीजंस है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं और आप बहुत फोकस्ड हो अपने करियर में. दूसरों की बातें, दूसरों की चीज़ें, और जो हम श्योर महसूस करते हैं, श्योर इन द सेंस कि हम कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारे कमरे के बाहर परिवार वाले जो भी आए हैं वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, उस टाइम वो हमें श्योर ही लगेगा, चाहे हम उनसे बहुत प्यार करते हो, पर उस टाइम के लिए वो आवाज़ हमें श्योर लगेगी. तो लाइक दिस सिचुएशन कैन लिटरली हैपन विद यू दैट यू आर इन योर रूम और आप बहुत शोर सुन रहे हो बाहर से, अपने कमरे के बाहर से, एंड यू आर मेकिंग न्यू प्लान्स एंड यू आर लाइक कि ये लोग शोर मचाई जा रहे हैं, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ को सोच रहा हूँ या सोच रहा हूँ. लाइक दैट कैन अगेन हैपन. एंड वी हैव द आउल एज वेल. आउल अगेन शोज विजडम, क्योंकि आपके करियर के लिए कार्ड निकला है. करियर वाइज आप वाइज डिसीजंस ले रहे हो, करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छे वाइज आइडियाज़ हैं. सो दैट कैन बी सीन. एंड अगेन यू आर प्रैक्टिकल, यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली. एजुकेशन में अगर आप हो तो आप अपने एजुकेशन पर प्रॉपरली ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो. आपका मन आपकी एजुकेशन में टिका हुआ है. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आप काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो आप अपने जॉब में जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाए. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में अगेन यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर एट वर्क, यू आर फोकस्ड. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. और अगेन दूसरा क्या कह रहा है, आप एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो, आप अपने आइडिया पर बहुत फोकस्ड हो. देन अबाउट योर फाइनेंसेस. अगर आप खुद अर्न करते हो, अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो तो फिर आपके परिवार में जो भी अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. अगेन अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके खुद के फाइनेंसेस के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी. We have the Knight of Pentacles. So जो भी अटका हुआ धन था, यानी अटका हुआ मनी था, आप सोच रहे थे कब ये पर्सन मुझे मेरे पैसे वापस करेगा, तो वो पैसे नवंबर में वापस होते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं. और ये भी शो कर रहा है ये कार्ड कि जो पेमेंट्स अगेन आपने काम कर दिया था, पेमेंट अटकी हुई थी, वो पेमेंट अगेन नवंबर में आ रही है. अगर आपने किसी को उधार दे दिए थे पैसे, वो उधार वापस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो कर रहा है कि यू आर सेविंग मनी, यू आर नॉट लाइक लेट मी बाय दिस, लेट मी बाय दैट, लेट मी गिव दिस मनी टू दिस पर्सन. नो, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है. यू आर सेविंग मनी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा पेसिमिस्टिक एनर्जी वाला कार्ड है, सेट्रेनियन कार्ड है. तो like this card shows that you want to save for the rainy day, you want to save for the future. So savings पर बहुत ज़्यादा ध्यान है. फाइनेंसेस आपके पास अच्छे आ रहे हैं, आपको अपने हार्डवर्क का करेक्ट मनी मिल रहा है, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं. आप सारा ही मनी बस सेव करना चाहते हो, कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते, कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते, सारा सेव करना चाहते हो. सो दैट्स देयर. और इनफैक्ट जैसे यहाँ पर 4th हाउस था, तो नाउ आई फील कि आप कोई व्हीकल नहीं ले रहे हो क्योंकि आप अपने फाइनेंसेस को ज़्यादातर सेव ही करना चाहते हो. तो इट कैन हैपन समवन इन योर फैमिली और समवन इन योर रिलेटिव्स और मे बी समवन इन योर फ्रेंड्स, दे हैव बॉट अ व्हीकल या फिर दे हैव बॉट अ रियल एस्टेट, या आपने कोई रियल एस्टेट खरीदा, ये भी चीज़ हो सकती है. एंड दैट्स वाई नाउ यू आर लाइक अब मुझे सेव करना है, मैंने पैसे बहुत खर्च कर दिए, नाउ आई वांट टू सेव मनी. तो वैसे व्हीकल्स के केस में भी हो सकता है दैट यू बॉट अ व्हीकल एंड नाउ यू आर लाइक आई वांट टू सेव, आई वांट टू सेव, आई वांट टू सेव. तो आई शुड से ये भी चीज़ हो सकती है. सो बट सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान है. यू वांट टू सेव फॉर द रेनी डे. और आपके पास जो भी अच्छा मनी आ रहा है, आपको अपने हार्डवर्क का मनी मिल रहा है, दैट्स देयर. बट सेविंग 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 ये बहुत अंदर तक भरा हुआ है आपके लिए, भरा हुआ है आपके पाइल नंबर 3. एंड आई ऑल्सो फील दैट you feel guilty conscious when you spend money.
क्योंकि ये भी एक परवरिश है, ये भी एक कल्चर में हमारे है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्ट के जो लोग हैं वो उधार लेकर भी जो है चीज़ ले आएंगे, वेरएज़ हमारे कल्चर में सेव करो सेव करो सेव करो। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है पाइल नंबर 3। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, यू मे फील गिल्टी कॉन्शियस अबाउट दैट। आप ये देखते हो किसी के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है और मैं ये इतनी महंगी चीज़ ले रहा हूँ, क्या ये मुझे शोभा देती है? तो लाइक दीज थिंग्स कम्स इन टू प्ले। तो ये आपका एक जनरल नेचर भी यहाँ पर दिख रहा है। Then we have, let's pull a card for you about your personal life. So, okay, we have the World card here. Again, I told you this thing before in the reading itself. शुरू में ही हमने इसके बारे में बात करी that on social media you may see लोगों को अपनी पिक्चर्स डालते हुए सुंदर सुंदर तैयार होके पिक्चर डाली हुई है ना, फोटो डाली हुई है। यू आर सीइंग दैट इन योर फ्रेंड सर्कल, यू आर सीइंग दैट इन योर नेटवर्क सर्कल, यू आर सीइंग दैट इन योर फैमिली सर्कल। पर वही चीज़ आप खुद फॉलो करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। आप यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड ये शो कर रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी नरिशमेंट पर, अपने आप को किसी चीज़ में बेटर करने पर ध्यान दे रहे हो। एंड अगेन द वर्ल्ड ऑल्सो शोज दैट यू मे गेट सम एजुकेशन डन, यू मे बिकम मोर नॉलेजेबल। आप कोई कोर्स करो नवंबर के मंथ में। एंड पर्सनल लाइफ में जो है, पर्सनल लाइफ में हमारे कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे सिबलिंग्स भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं। पर यहाँ पर तो आप सिर्फ अकेले नज़र आ रहे हो और अकेले खुश नज़र आ रहे हो। सो लाइक यू आर हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर हैप्पी इन योर ओन लाला लैंड, यू आर हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड भी आया ना, यू आर हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। आप दूसरे लोगों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहे हो। यू आर जस्ट सीइंग दैट हाँ ये हैं, ये बैठे हैं, ये पिक्चर है, ये डाली थी उन्होंने, ऑल दैट यू आर सीइंग दैट, बट यू आर हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। यू आर नॉट रियली सराउंडेड बाय मैनी पीपल, ऐसा नहीं है। You're in your own world, you're in your own room, doing your own stuff, doing your own thing. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। And I don't really get any relationship related thing going on. अगर आप एक relationship में भी हो या अगर आपकी marriage हुई है, you're married, or if you're in a committed relationship, then also I will say कि आप अपनी दुनिया में ज़्यादा busy हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा focus कर रहे हो, आप इतना भी ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो। बट ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे डिससेटिस्फाइड हैं या आपसे अलग है, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। दे आर हैप्पी टू सी यू हैप्पी। सो ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन ऑफ कोर्स यू आर हैविंग फन ऑन योर ओन। यू आर रियली एन इंट्रोवर्ट इन नवंबर मंथ, पाइल नंबर 3। यू कैन इवन बी अ सिंगल चाइल्ड, पाइल नंबर 3। ये तो बहुत सारे कार्ड निकल आए। फॉर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ पाइल नंबर 3, क्या यहाँ इंफॉर्मेशन है? ओके, वी हैव द मैजिशियन। You have the magician. Even with this magician card, it shows that you are creating something magical, you are creating something miraculous through your own efforts. You are making gold out of mud. ये भी चीज़ है, यानी कि एक ऐसी चीज़ से जो बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती, आप उस चीज़ से कोई वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट कर रहे हो। दैट्स देयर। और मैजिशियन कार्ड यही शो कर रहा है कि हेल्थ अच्छी है, आपको अपनी हेल्थ जो है प्रॉब्लम नहीं दे रही है आपके काम में। आपकी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ दोनों अच्छी नज़र आ रही है, आपके लिए मेंटल फिज़िकल हेल्थ ट्रबल नहीं है। दैट कैन बी सीन। एंड समथिंग मोर अबाउट हेल्थ इफ वी कैन गेट, we have the 4 of Pentacles. With the 4 of Pentacles, you may not talk about your health to other people. You can be very secretive about your health. ऐसा हो सकता है कि you don't want to jinx things, right? जैसे कई लोग होते हैं कि बताएंगे नहीं कि क्या चल रहा है, या कई लोग होता है कि पूछने पर भी नहीं बताएंगे कि हेल्थ कैसी चल रही है या हाउ आर यू डूइंग इन लाइफ। क्योंकि अगर कोई अच्छा चल रहा है अपनी लाइफ में, उसकी हेल्थ अच्छी चल रही है, तो उसको लगता है अगर मैंने दूसरे को बता दिया तो एवरीथिंग विल गेट जिंक्स्ड, सो आई शुड नॉट टेल एनीबॉडी, नज़र लग जाएगी। सो देयर आर पीपल हु डू दिस थिंग।
यू कैन बी वन ऑफ देम. पाइल नंबर 3, हेल्थ अच्छी चल रही है तभी आप किसी को बताना नहीं चाहते कि कैसी चल रही है हेल्थ, बिकॉज यू डोंट वांट टू जिंक्स इट, नज़र ना लग जाए मेरी हेल्थ को. तो लाइक you have this kind of, you can have this kind of belief system, and you're not talking so much about, or you're not stressing so much about health, mental और physical health. ऐसा नहीं नज़र आ रहा, बहुत बिजी नज़र आ रहे हो अपने काम में. ये मजिशियन कार्ड भी यही शो कर रहा है, हेल्थ के बारे में कार्ड आया है, बट ये यही शो कर रहा है कि आप अगेन अपने वर्क में बिजी हो. हेल्थ आपका फोकस एज सच इतना नहीं है, क्योंकि हेल्थ तब हमारा फोकस बनता है जब कुछ प्रॉब्लम हो, जब कोई हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, तब हम हेल्थ पर फोकस करना शुरू करते हैं. जब हमारा हेल्थ ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है ना, हम उस पर फिर इतना ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं, हम फिर दूसरे कामों पर फोकस करते हैं. फोकस हमारा जाता ही उधर है ज़्यादातर, जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, स्पेशली हेल्थ के केस में. So you're again working, you're doing stuff, you're doing things, and you don't want to talk about health. Health is going well, you don't want to jinx it. So बस ये information आपके लिए आ रही है pile number 3 for the month of November. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Again हम साइंस की बात करें तो एरीज, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, I'll say वर्गो, जेमिनाई, ये यहाँ पर इवन सेजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और इवन जैसे इवन वर्गो साइन, तो वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, वी हैव फास्ता, चित्रा. सेजिटेरियस में we have the nakshatra of मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. कैप्रिकॉर्न में स्पिल करता है उत्तरा आषाढ़ा, फिर श्रावण धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र स्पिल करता है एक्वेरियस साइन में, फिर शतभिषाख और पूर्व भद्रपदा, फिर इवन पाइसीज साइन. तो पाइसीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा अगेन, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो ये साइंस, ये नक्षत्र यहाँ प्रोमिनेंट है. एंड अगेन साइन ऑफ कैंसर, कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र यहाँ पर प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन साइन, इन नक्षत्र. इसमें सन, मून या फिर आपका असेंडेंट लॉर्ड, Atmakar ka planet holding the highest degree in your chart can be placed in these signs, in these nakshatras. Alright, pile number 3. So yeah, that was the reading for you. And do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. And जो भी आप effort कर रहे हो वो successful ज़रूर होंगे. Success is on your cards, pile 3. And do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And one more thing, a guidance card. I completely forgot about this guidance card. So yeah, we have the knowledge card. Seek knowledge. You're already seeking knowledge. Pile number 3, you're already seeking knowledge. So एरीज साइन, वैसे जैसे मैंने बताया, हमारे दिमाग वाले एरिया, हमारी इंद्रियों वाले एरिया के लिए, हमारे हेड एरिया के लिए है. सो यू आर गेनिंग लॉट ऑफ नॉलेज एंड यू आर वाइज इनफ, ये यहाँ नज़र आ रहा है. एंड अगेन यहाँ पर लोग जो हैं दूसरे लोगों के साथ बिजी नज़र आ रहे हैं, और आप यहाँ पर अपने कमरे में कोई बुक रीड कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हो. सो वी ऑलरेडी अगेन टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो सीक नॉलेज, ये आपके लिए गाइडेंस भी है. एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट सम ऑफ यू कैन गेट अ कोर्स डन, और सम ऑफ यू आर लर्निंग समथिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो ये भी चीज़ है. ऑल राइट, सो या that was it. This was the reading. And also, if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set on the website itself. The link to my website is in the description box below. And if you are, and yeah, that was it. Ye bolna tha. That was it. I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.